اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی دردناک خبر اس وقت ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ حیدرآباد سے ہمارے رپورٹر عبداللطیف صدیقی صاحب نے بتایا کہ حیدرآباد میں ایک اندوہناک، دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ گلزار ہاؤس میں خطرناک بھیانک آگ لگی، شدید آتش زدگی میں 17 افراد، یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ 17 افراد کی موت ہو گئی اور درجنوں افراد کی حالت ابھی بھی سنگین ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی اور حیدرآباد کے وزیر اعلیٰ، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے PMNRF فنڈ سے شہید ہونے والے افراد کے لواحقین کو 2 لاکھ اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس المناک واردات میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد کی ہلاکت نہایت افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اظہار تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری ہمدردیاں ان افراد کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، شیو سینا ادھو ٹھاکرے، جی سربراہ شیو سینا، اوریجنل شیو سینا کے اوریجنل سربراہ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ آج بھی جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے۔ مہاراشٹر میں میونسپل کارپوریشن الیکشن کو لے کر ادھو کی پارٹی لیڈران کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ ہوئی۔ اقتدار ملنے کے بعد گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ہمارا جہاز نہیں، بی جے پی کا جہاز ڈوبنے والا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ بی جے پی کا جہاز اس لیے ڈوبنے والا ہے کیونکہ بی جے پی اوور لوڈ ہو گئی۔ جب جہاز اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ ڈوبنے کے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب ادھو ٹھاکرے نے اپنی پارٹی کی میٹنگ میں اپنے لیڈروں سے کہا کہ دیکھو بھائی، آج بھی جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن آنے والا ہے، میونسپل الیکشن آنے والا ہے، الیکشن میں عجیب عجیب صورتیں دیکھنے ملتی ہے۔ ایسے بھی لوگ جن کو پارٹی نے لیڈر بنایا، کاریہ کرتا سے چٹائی اٹھانے والے سے لے کر نہ جانے کیا کیا بنا دیا، جن کو پارٹی نے بہت کچھ دے دیا، وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ ادھو نے لوگوں کو گرو منتر بھی دیا۔
नाज़रीन, इस वक्त तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की लिस्ट सामने आती जा रही है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी जितने पकड़े गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनका ताल्लुक मुसलमानों से, अहले ईमान से नहीं है। जी, अब ये जितने पकड़े जा रहे हैं, इनको लेकर हरियाणा के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कसूरवारों को सजा मिलना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। हुड्डा ने कहा कि अगरचे कि राहुल गांधी इस मामले में पहले ही अपना रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन मुल्क जो भी सवालात उठ रहे हैं उनके जवाबात जानना चाहता है। और कमाल यह है कि वजीर आजम मुल्क की जनता को, न मुल्क की पार्लियामेंट को, न मुल्क की मीडिया को, किसी को भी नरेंद्र मोदी जवाब देना नहीं चाहते हैं। वो सवालों से भागते हैं और आप जानते हैं कि सवालों से कौन भागता है। खैर, अभी जो पकड़ी गई यूट्यूबर जी मल्होत्रा है या क्या है, जो भी है, मुसलमान नहीं है, तो अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बीजेपी के वो मंत्री जिन्होंने बयान दिया था सूफिया कुरैशी को लेकर, नाम सूफिया कुरैशी का मुसलमान जैसा था, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिला दिया था। तो अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जनाब विजय शाह साहब, ये भी आपकी बहन हो सकती है, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है और दोनों का मजहब एक है, तो क्या हम फिर इसको आपकी बहन कह दें? नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता कल हाजियों का एक कैंप था करीब में हमारे रजा कॉलोनी में। मुफ्ती अबू ज़र नदीम साहब ने एक तरबियती कैंप रखा था मस्जिद अब्दुल मन्नान में। वहाँ आखिर में मेरी दुआ हुई और आखिरी खिताब हुआ। तो हाजी जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनके हज को बेइंतहा कबूल फरमाए। लेकिन सऊदी अरब ने वार्निंग दी है कि जाली हज मुहिम्मात, यानी जो डुप्लीकेट होते हैं, जाली होते हैं, जी फ्रॉड होते हैं, उन तमाम से होशियार रहे। गैर मजाज दफातर से होशियार रहने की सऊदी अरब ने ताकीद की है और आज़मीन हज के कवायद और ज़वाबित तय कर दिए गए हैं। आज़मीन हज को चाहिए कि वो उन कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करें। और गुज़िश्ता कल मैंने हाजियों को ख़ास तौर से ये कहा कि अल्लाह के मेहमान बनकर जा रहे हो और ये मत समझना कि तुम अपने पैसों के बलबूते पर जा रहे हो। नहीं, अगर पैसों और दौलत के बलबूते पर कोई जाता तो फिर बड़े बड़े करोड़पति हर साल हज को जाते, लेकिन अभी तक एक बार भी अल्लाह ने उनको नहीं बुलाया। तो वहाँ पर वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। तो इस बात का ख्याल रखना कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, वहाँ कोई बेअदबी ना हो। और एक बात मैंने अहम कही हाजियों को कि वहाँ पर भी शैतान बहकाता है। शैतान बहकाएगा कि काबे के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो, वो तबलीगी है, वो वहाबी है, वो देवबंदी है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, वो काफिर है। तो मैंने समझाया कि देखो, अगर उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हो हज को जाने के बाद, तो फिर तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। काबतुल्लाह के इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना। अगर वहां जाकर भी उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। हाजियों, हज को जा रहे हो तो होटलों में नमाज नहीं पढ़ना। अगर होटलों में ही नमाज पढ़ना थी तो बंबई की ताज होटल में ठहर जाते। ताज होटल बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हज को जा रहे हैं वहां काबतुल्लाह के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जासूसी मामले में आप जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर का नाम आया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के बाद में एक और यूट्यूबर से तफ्तीश की जा रही है, पूछगछ की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जासूसी के मामले में मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कोई मुसलमान इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। खैर, ज्योति मल्होत्रा के बाद में एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की जा रही है और पुरी में, उड़ीसा के मजहबी शहर पुरी में छापे मारे गए, पूछताछ की गई। मजहबी शहर पुरी में उस वक्त हलचल मच गई जब एक मकामी यूट्यूबर
प्रियंका सेनापति का नाम पाकिस्तान के लिए मुबैना जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जोड़ा गया। पुलिस ने दोनों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत और किसी मुमकिन मुल्क दुश्मन सरगर्मी में शमूलियत के खदशे को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। नाज़रीन, वक्फ को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह लगातार इस वक्त पूरे मुल्क में हरकत में मुसलमान हैं और जगह जगह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आदेश, उनकी ईमा और उनके हुक्म पर बाकायदा मुसलमान शांततापूर्व अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। गुज़िश्ता कल जलगांव जिले के पाचोरा में भी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी एक बनाई गई और वहां पर A1 हॉल पाचोरा में एक शानदार प्रोग्राम अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ और मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था और इस प्रोग्राम में जनाब मोहतरम सैयद अयाज अली, मोहतरम एजाज मलिक साहब, मोहतरम सुहेल अमीर साहब, खालिद बाबा बागबान, फारूक शेख साहब और तमाम ही लोग इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में जलगांव ज़िले के तमाम लोग जिम्मेदारान शरीक रहे और ये प्रोग्राम बे इंतहा कामयाब रहा। सैयद अयाज अली, एजाज मलिक साहब, फारूक शेख साहब ने उसकी कानूनी जो संविधान के खिलाफ किस तरीके से ये नापाक कानून आया है, इस नापाक कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए तफसीली अपनी गुफ्तगू पेश की। मेरे ज़िम्मे उन्वान दिया गया कि उलमाए किराम औकाफ को लेकर कैसे बेदारी पैदा करें, तो मैंने दोनों उन्वान पर औकाफ की अहमियत शरीयत में क्या है उस पर बात रखी। उलमाए किराम को उनकी जिम्मेदारियां समझाया कि किस तरीके से वो मसाजिद के खिताबात और जुमा के बयानात के जरिए से उम्मत में वक्फ को लेकर बेदारी पैदा करें। और मैंने नरेंद्र जी मोदी का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि जब जब भी वो शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं तो मुसलमान जाग जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं। मैंने बताया कि देखिए नरेंद्र जी मोदी का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने बदमाशी की तो आज स्टेज पर अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, तमाम जिम्मेदारान एक साथ मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। तो टू बी पॉजिटिव, इसी चीज को सुहेल अमीर साहब ने भी कहा और मैंने ये भी कहा कि इस वक्त नाजुक मसला है, औकाफ को बचाने के लिए हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हर शहर में कुछ काड़ा करने वाले रहते, कुछ मक्कार रहते, कुछ गद्दार रहते, कुछ ऐसे भी रहते जिनको आपने पाला पोसा, बोलना सिखाया, मार्केट में लाया, आपकी वजह से उनको पहचाना जाता है, मगर वो आपके साथ गद्दारी करेंगे तो आप उनसे भी दुश्मनी नहीं लेना बल्कि सारे झगड़ों को भुला देना और औकाफ की हिफाजत के लिए सबने मिलकर मुत्तहिद होकर काम करना, क्योंकि हमारे इत्तेहाद ही से हम इस जंग को जीत सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा औकाफ की हिफाजत को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आदेश को लेकर सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और एक्टिव कोई जिला है तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिला जलगांव। और जलगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है उसका सदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद को बनाया गया है, कोऑर्डिनेटर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिले के हर शहर में जा रहे हैं और सबसे पहले हम मुसलमानों को बेदार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि औकाफ क्या है और हुकूमत की मक्कारी और बदमाशी क्या है और ये वक्फ का जो काला कानून पास किया गया है, बनाया गया है, ये काला कानून क्या है और हम लोगों को फिर अगली जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, आज यानी 19 मई को अकोला शहर में एक बड़ा इलाका है भारत नगर अकोट फाइल, वहां पर सरदार खान उर्दू हाई स्कूल के बाजू में एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान तालीमी कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाफिज मोहम्मद सादिक शाह साहब जो मदरसा तजवीदुल कुरान के चीफ है, सरबराह है, उनकी दावत पर आज जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी के सदर मोहतरम मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी और नायब सदर महाराष्ट्र मैं खुद वहां पर मुकर्रर खुसूसी के तौर पर हम बुलाए गए हैं और वहाँ के अकोला शहर के जामिया हुसैनिया के और दीगर मसाजिद के और मदारिस के तमाम उलमा अइम्मा बड़ी तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। और औरंगाबाद से साबिक मेंबर पार्लियामेंट
जी हाँ, खासदार इम्तियाज जलील, माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब MIM, वो भी वहां आ रहे हैं और अकोला शहर के तमाम सियासी, समाजी, मिलने जिम्मेदारान इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरात लिए हैं उन बच्चों को भी बाकायदा हमारे हाथों से इनामात से नवाजा जाएगा। और मौजूदा दौर में तालीम की कितनी अहमियत है और बच्चों की दीनी इस्लामी तालीम भी कितनी ज़रूरी है, बच्चों की ईमानी तालीम भी कितनी ज़रूरी है, इस पर इंशाअल्लाह मेरा तफसीली बयान होगा और मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब का तफसीली बयान होगा। बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। मैं अकोला, सोनोरी, अकोट और बालापुर आसपास के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज शाम 7 बजे बाद नमाज मगरिब भारत नगर अकोट फाइल अकोला में इस शानदार प्रोग्राम में आप जरूर पहुंचें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तबसरा करने की वजह से अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कोई तबसरा किया था। खैर, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, नहीं करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम हमारी फौज का सम्मान करें, उनके सम्मान को, उनके हौसले को और उनके आन बान शान को और बढ़ाए और उनको हौसला दे। ऑपरेशन सिंदूर पर कई लोग तबसरा कर रहे हैं और मोदी जी की वजह से कई लोग ऑपरेशन सिंदूर को भी निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमारी फौज की बहादुरी की एक अलामत है। जहां तक बात करें नरेंद्र मोदी के पीछे हटने की, तो उसके खिलाफ तो ये समझिए कि पूरा मुल्क बोल रहा है। उद्धव ठाकरे का भी बड़ा खतरनाक बयान आया है, राज ठाकरे का भी बड़ा खतरनाक बयान आया है, क्योंकि मुल्क चाहता था कि पाकिस्तान को सबक सिखा दे। लेकिन खैर, ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करने की वजह से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर अली खान महमूद ने वजाहत की है, उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि खवातीन कमीशन ने मेरी पोस्ट को इतने गलत अंदाज में पढ़ा और समझा है कि उनका असल मतलब ही उलट दिया। उन्होंने कमीशन पर अपने दायरे इख्तियार से तजावुज करने का भी इल्जाम आयद किया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, जावेद अख्तर मारूफ मशहूर नगमा निगार है। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर मुझसे कहा जाए कि पाकिस्तान जाना पसंद करोगे या जहन्नम में जाना पसंद करोगे, तो मैं पाकिस्तान और जहन्नम में से अगर इंतखाब मुझे करना पड़े तो मैं जहन्नम में जाना पसंद करूँगा, मगर पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। नगमा निगार जावेद अख्तर जो हुब्बुल वतनी और मजहब से मुताल्लिक अपने ख्यालात पर अक्सर तनकीद के ज़द में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कभी उनके सामने पाकिस्तान और दोज़ख के दरमियान इंतखाब का मौका आए तो वो दोज़ख जाना पसंद करेंगे। 80 साल के जावेद अख्तर ने यह बात शिवसेना के रहनुमा संजय राउत की किताब की रस्मी इजरा का एक प्रोग्राम था, उस मौके पर हफ्ते की रात मुंबई में कही। जावेद अख्तर ने जो खुद को मुल्हिद या लामज़हब करार देते हैं, उन्होंने कहा कभी आपको अपना ट्विटर यानी अब एक्स और व्हाट्सएप दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ के लोग मुझे गालियां देते हैं। मैं नाशुक्रा नहीं हूं, कुछ लोग मेरी बातों को सराहते भी है, हौसला देते हैं, लेकिन यह सच है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के इंतहा पसंद और कट्टरवादी मुझे बुरा भला कहते हैं, मगर मैं जहन्नम में तो जाना पसंद करूंगा, मगर पाकिस्तान को नहीं चुनूंगा। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अभी जो नए हमारे चीफ जस्टिस बने हैं CJI गवाई, इन्होंने कहा कि आईन सबसे बरतर है, संविधान दस्तूर सबसे ऊपर है, इसके सुतूनों को मिलकर काम करना चाहिए। यानी जितने लोग संविधान से प्यार करते हैं, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान को बचाने के लिए सब ने मिलकर काम करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस के इस बयान से बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि गवाई साहब आईन को सबसे ऊपर रखेंगे और वक्फ का जो नापाक कानून आईन के दस्तूर के संविधान के खिलाफ पास किया गया है, हमें यकीन है कि गवाई साहब इस पर ध्यान देंगे और आईन और दस्तूर को, जैसे उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर दस्तूर है, तो हमें उम्मीद है, यकीन है कि गवाई साहब दस्तूर को, संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए ऐसा कानून जो संविधान से टकराता है, ऐसे कानून को
निकाल कर फेंक देंगे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्यूरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।